ایک بات پوچھنی ہے اور یہ انکمفرٹیبل ہوگی لیکن ضروری ہے۔ تم نے کبھی اپنے آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، دوسروں سے جھوٹ نہیں پوچھا تھا، نہ ہی میں پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے، اندر سے۔ جب تم جانتے ہو ایک چیز غلط ہے لیکن اپنے آپ کو کنونس کرتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، میں صرف ایک اور ایپیسوڈ دیکھوں گا، بعد میں پڑھوں گا، یہ لاسٹ ٹائم ہے، کل سے پکا نہیں کروں گا، میں اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں۔ اللہ سمجھتا ہے یہ گناہ نہیں ہے، ایکچولی کانٹیکسٹ الگ ہے۔ سنا ہے یہ خود سے بولا ہے، میں نے بولا ہے بار بار، اور آج ہم بات کریں گے کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور اس سے نکلنا کیسے ہے، کیونکہ جب تک تم خود سے اونسٹ نہیں، تم اپنی فطرت تک نہیں پہنچ سکتے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ پھر وہی سائیکالوجی گریجویٹ ہوں، اسکالر نہیں، ریسرچ اور انڈرسٹینڈنگ شیئر کر رہا ہوں۔ دین کے مسائل اسکالر سے ویریفائی کرو، آگے بڑھتے ہیں۔ 1957 میں ایک سائیکالوجسٹ تھا لیون فیسٹنگر کے نام سے، اس نے تھیوری دی تھی کوگنیٹیو ڈیزونانس۔ یہ سائیکالوجی میں سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹس میں سے ایک ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کوگنیٹیو ڈیزونانس ہے کیا؟ تو اس کو ذرا آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ جب تمہارا بلیف اور تمہارے ایکشن میچ نہیں کرتے تو تمہارے اندر ایک انکمفرٹیبل فیلنگ آتی ہے، ایک مینٹل ٹینشن، اور تمہارا برین وہ ٹینشن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ ایک کام کرتا ہے، یا تو ایکشن کو چینج کرو یا بلیف چینج کر دو۔ اور ایکشن چینج کرنا مشکل ہے تو برین شارٹ کٹ لیتا ہے، بلیف کو ٹویسٹ کر دیتا ہے۔ اب ذرا اس کو ایک کلیئر ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان سگریٹ پیتا ہے، وہ جانتا ہے یہ ہیلتھ کے لیے برا ہے، اس کا بلیف ہے اسموکنگ از بیڈ، ایکشن وہ یہی کر رہا ہے کہ میں اسموک کر رہا ہوں۔ ڈیزونانس یہ ہے کہ یہ میچ نہیں کر رہا، بلیف اس کا ہے کہ وہ اسموکنگ بیڈ ہے۔ تو برین کا سولوشن کیا ہے؟ ہاں لیکن میرا دادا بھی پیتا تھا اور وہ 90 سال جیتا رہا ہے۔ ہاں لیکن پولیوشن بھی تو ہے۔ ہاں لیکن سٹریس ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ دیکھا، ایکشن نہیں بدلا، بلیف کو جسٹیفائی کر دیا۔ یہ سیلف ڈسیپشن ہے۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں۔ تم جانتے ہو نماز فرض ہے لیکن قضا کر رہے ہو۔ بلیف یہ ہے کہ نماز امپورٹنٹ ہے، ایکشن میں نہیں پڑھ رہا۔ ڈیزونانس اس میں آئے گی کہ آپ انکمفرٹیبل فیل کرو گے۔ برین کا سولوشن اس میں کیا آئے گا؟ اللہ سمجھتا ہے میں کتنا بیزی ہوں، بعد میں قضا کر لوں گا۔ دل صاف ہے، اللہ وہ دیکھتا ہے، کم از کم میں برے کام تو نہیں کر رہا۔ یہ سب سیلف جسٹیفیکیشن ہے، تمہارا برین اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے لیکن ریالٹی چینج نہیں ہو رہی۔ سائیکالوجی میں اس کو ڈیفینس میکانزم کہتے ہیں۔ پہلا ریشنلائزیشن، لاجیکل ریزن ڈھونڈنا جو ایکچوئل میں لاجیکل نہیں ہے۔ دوسرا ڈینال، پرابلم کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، مجھے کوئی ایشو نہیں، ایسا اپنے آپ کو کہہ لو۔ دوسرا ڈینال، پرابلم کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، جیسے کہ یہ کہہ دینا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے یہ کرنے سے۔ تیسرا پروجیکشن، اپنی غلطی دوسروں پہ ڈالنا، سب ایسے ہی کرتے ہیں۔ مینیمائزیشن، چوتھا غلطی کو چھوٹا دکھانا، اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ اگر میں ایسے چھوڑ رہا ہوں یا ایسے کر رہا ہوں۔ یہ سب نیچرل ہے، برین اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن یہ تمہیں تمہاری گروتھ سے روکتا ہے، کیونکہ جب تک تم پرابلم ایکسیپٹ نہیں کرتے سالو نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں اسلام نے اس چیز کو کیسے ایڈریس کیا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ
दे रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशउरून, और इन्हें एहसास भी नहीं है। ये आयत मुनाफिकों के बारे में थी, लेकिन इसका प्रिंसिपल हर इंसान पे अप्लाई होता है। जब तुम अपने आप से झूठ बोलते हो, तुम सोचते हो कि तुम दूसरों को फूल कर रहे हो या अल्लाह को, लेकिन अल्लाह तो जानता है। लोग भी इवेंचुअली समझ जाते हैं और सबसे पहले तुम खुद सफ़र करते हो, क्योंकि तुम्हारी इनर जो पीस है वो चली जाती है। इस्लाम ने इसका सोल्यूशन भी दिया है, और इसकी अप्रोच में जो सबसे पहली चीज़ आती है, जो पहली हमारे पास चीज़ आती है, वो है मुहासबा। उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि अपने नफ्स का हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। मुहासबा मतलब रोज़ रात को अपने आप से पूछो, आज मैंने क्या किया, क्या गलत किया, क्यों किया, कल कैसे बेहतर करूँगा। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है, बिना जस्टिफिकेशन के, बिना एक्सक्यूज़ के, सीधी बात अल्लाह से और अपने आप से। लेकिन ये करना मुश्किल है, क्योंकि हम सच से डरते हैं। सच ये है कि हम अपने आप को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम सच देख लें तो चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना मुश्किल है, तो हम इग्नोरेंस में रहकर कंफर्टेबल रहते हैं। कुरान कहता है सूरह अल-हुजरात में कि अपने आप को मत समझो पाक, अपने आप को तुम बेहतर मत समझो। अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन कितना मुत्तकी है। ये वार्निंग है सेल्फ राइटियसनेस के खिलाफ, कि तुम अपने आप को जस्टिफाई करते हो और दूसरों को ब्लेम करते रहते हो, लेकिन असली प्रॉब्लम तुम्हारी ऑनेस्टी की कमी है। अब ज़रा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये हैं 7 साइंस कि तुम खुद से ऑनेस्ट नहीं हो। अगर ये आप में हैं चीज़ें, तो आप ज़रा अपना मुहासबा कीजिएगा और उसको फिर ठीक करने की कोशिश भी कीजिएगा। पहला साइन, कांस्टेंट जस्टिफिकेशन। हर गलती के लिए तुम्हारे पास रीज़न है, और वो रीज़न हमेशा एक्सटर्नल है। मैं लेट हुआ क्योंकि ट्रैफिक था, मैं नमाज मिस कर गया क्योंकि काम था, मैं गुस्सा हुआ क्योंकि उसने शुरू किया। अगर तुम्हारे पास हमेशा एक्सक्यूज़ है, तो ये बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग है। दूसरा साइन, कंपेयरिंग, अपने आप को कंपेयर करना। तुम अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करते हो जो तुमसे बुरे हैं। कम अज़ कम मैं उससे तो बेहतर हूँ, देखो वो तो बहुत बुरा है, मैं इतना तो नहीं। ये सेल्फ डिसेप्शन है। कंपैरिजन अल्लाह से होनी चाहिए, जो उसने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, ना कि अपने से जो कम दर्जे वाले लोग हैं उनसे। तीसरा साइन, आप फीडबैक को अवॉइड करते हो। जब कोई तुम्हें सच बताए, तुम डिफेंसिव हो जाते हो। तू मुझे जज मत कर, तू परफेक्ट नहीं है, तू नहीं समझता मेरी सिचुएशन। अगर तुम फीडबैक एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्या तुम्हें सच में इम्प्रूव करना है? चौथा साइन, कुछ चीज़ें एडमिट कर लेते हो लेकिन गलतियाँ छुपा लेते हो, यानी कि सिलेक्टिव ऑनेस्टी। हाँ, मैं थोड़ा लेज़ी हूँ, लेकिन ये नहीं कहते मैं नमाज़ कज़ा करता हूँ। ये पार्शियल ऑनेस्टी है, और ये भी डिसऑनेस्टी ही है। पाँचवां साइन, फ्यूचर प्रॉमिसेस। हमेशा कहते हो कल से करूँगा, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। ये ब्रेन का ट्रिक है, तुम्हें गुड फील कराना विदाउट एक्चुअल चेंज। छठा साइन, सब कुछ तुम्हारे साथ ही क्यों होता है, यानी कि विक्टिम प्ले करना। लाइफ अनफेयर है, अल्लाह ने टेस्ट ही ज़्यादा दिया। हाँ, लाइफ मुश्किल है, लेकिन अगर तुम हमेशा विक्टिम हो, तुम्हारा कंट्रोल ख़त्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। तो कोशिश करें कि विक्टिम प्ले करना हम बंद कर दें। सातवां साइन, गिल्ट विदाउट चेंज। तुम्हें गिल्ट फील होता है, रो भी लेते हो, अस्तगफिरुल्लाह भी कह देते हो, लेकिन एक्शन नहीं बदलते। मेरी एक बात ज़रा ध्यान से, जेन्युइन तौबा इज इक्वल टू गिल्ट प्लस चेंज, फेक तौबा इज इक्वल टू गिल्ट विदाउट चेंज। पहला, अल्लाह को पसंद है,
और दूसरा सिर्फ सेल्फ सूथिंग के लिए होता है। कितने साइन मैच हुए ऑनेस्ट बनो और उसको लिखो। अब इस पर भी आते हैं तो खुद से ऑनेस्ट कैसे बने। पहला स्टेप, डेली मुहासबा। रोज रात को सिर्फ 5 मिनट अपने आप से पूछो, आज मैंने क्या गलत किया, क्यों किया, रीज़न क्या था, कल क्या करूँगा डिफरेंटली। लिखो, जर्नल बनाओ। दूसरा स्टेप, एक्सेप्ट डिस्कम्फर्ट। सच अनकंफर्टेबल होता है, एक्सेप्ट करो, हाँ मैंने गलत किया, हाँ मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, हाँ मुझे चेंज करना है। ये डिस्कम्फर्ट ये पहला कदम है ग्रोथ का। तीसरा, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से हेल्प मांगो। एक बहुत खूबसूरत दुआ है और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि अरबी में, सच्चे दिल से आप उर्दू में भी मांग सकते हो कि अल्लाह मुझे हक दिखा दे हक की सूरत में, और मुझे उसकी इत्तबा की तौफीक दे, और मुझे बातिल दिखा दे बातिल की सूरत में, और मुझे उससे बचने की तौफीक दे। आमीन। ये दुआ क्लैरिटी के लिए है कि अल्लाह तुम्हें सच दिखा दे बिना फ़िल्टर के, बिना एक्सक्यूज़ के। चौथा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एक ट्रस्टेड फ्रेंड जो तुम्हें ब्रूटली ऑनेस्ट फीडबैक दे सकता है और तुम डिफेंसिव ना हो, ये बहुत पावरफुल है। इससे आपकी ग्रोथ और चेंज का चांस 67% तक बढ़ जाएगा। पाँचवा स्टेप, स्मॉल ऑनेस्ट एक्शन। छोटी चीज़ से शुरू करो। अगर तुमने गलती की है, एडमिट करो इमीडिएटली। अगर तुम्हें नहीं पता, कहो आई डोंट नो। अगर तुमसे नहीं होगा, कहो आई कांट। ये स्मॉल एक्ट्स ऑफ ऑनेस्टी ये हैबिट बनती है। रमज़ान में ये सब इजी हो जाता है क्योंकि रमज़ान फोर्स्ड ऑनेस्टी है। तुम छुपा नहीं सकते कि तुमने क्या खाया, तुम छुपा नहीं सकते कि रोज़ा रखा या नहीं। ये ट्रांसपेरेंसी ये तुम्हें ट्रेन करती है कि ऑनेस्टी से जियो और ओपनली जियो। तो इस रमज़ान अपने आप के साथ ऑनेस्ट बनो, एक्सक्यूज़ेस बंद करो, जस्टिस अपने आप को जस्टिफाई करना और जस्टिफिकेशन देना बंद करो। सीधी बात, अल्लाह से, अपने आप से। तो आज का रिफ्लेक्शन, एक ऐसी गलती जो मैं बार बार करता हूँ और अपने आप को जस्टिफाई करता हूँ, रियल रीज़न क्या है। ऑनेस्ट बनो, लिखो सिर्फ अपने लिए। ये पहला कदम है ऑनेस्टी की तरफ। आज का वर्कशीट पावरफुल है कि ऐसे 7 साइन जो कि मैंने ऊपर बताए हैं वो उसमें लिखे हुए होंगे और आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, मुहासबा कर सकते हो। और मैं कुछ करूँगा कि वहाँ पे दुआज़ भी मेंशन करके वहाँ पे लिख दो। कल का एपिसोड डर और यकीन पे होगा कि एंग्ज़ायटी को इस्लाम की नज़र से देखना, कि एंग्ज़ायटी गुनाह नहीं है और इसे कैसे डील करें। तो आज हमने क्या सीखा? एक, कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब बिलीफ और एक्शन मैच नहीं करता, ब्रेन बिलीफ को ट्विस्ट कर देता है। 2, कुरान ने 1400 साल पहले कहा, वो सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं। 3, 7 साइन हैं सेल्फ डिसेप्शन के, आइडेंटिफाई करो। 4, मुहासबा करो, ऑनेस्ट बनो, अल्लाह से मदद मांगो। ऑनेस्टी मुश्किल है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अपने आप से ऑनेस्ट नहीं, तुम अपनी फितरत तक नहीं पहुंच सकते और अल्लाह तुमसे वही मांगता है, ऑनेस्टी, इखलास। रमज़ान मुबारक। कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।